लेना चाहूंगा, वो भी चीन से संबंधित ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी हैव हर्ड अबाउट द चाइनीज मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ वॉरफेयर विच कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली थ्री एस्पेक्ट्स: psychological warfare, media warfare, and legal warfare. Sir, in Indian context, how are these playing out? And do you see any of these in internal events in India as well? See, what China does is China has made a doctrine, and it has relied a lot on what happens in the rest of the world. What they look at is preparation in terms of psychological warfare. They also study each country with whom they can go to war, every country. And what are the internal dynamics? What is it that they can make use of? How they can perfect their propaganda through the media and social media that exists in the country, and utilize this to create disinformation campaign that they would like to do, and ultimately create fissures within the country itself in terms of public opinion, so that there is a doubt created in the minds of people who are deployed on the border as to whether what they are doing is right or they are not doing it rightly. And this is a very old technique of theirs, psychological warfare. They, in 62 also, they used to broadcast in front of our troops कि तुम हमारे इलाके में आ गए हो, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं है. They did the same for very long time against Taiwan. They have done similar things in Korean War, and they have done similarly now in terms of propaganda when they are deployed in Eastern Ladakh against us. They have made use of media. There are a lot of people whom they call for conferences, excursions. They give them costly gifts. They look after them. And as a result, what happens is that our own people start writing against the government. Our own people start putting into social media what China wants to do. And they create a doubt within our own people's mind. So this is, you can see the manifestation of this already taking place. And this will be followed if they want to, as part of their doctrine. There is a phase of carrying out surprise. There's a phase of carrying out preemptive action before the actual action starts. So I'm quite sure, like we used to study about what they can do. The present generation is also doing the same in our armed forces, and they are fully prepared to what China can throw at them. धन्यवाद सर। और 1962 के ऊपर आपने कई सारी बातें बताई, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारी हमें मिली। तो शायद 1962 पर अब हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, पर आपसे अनुरोध है कि आप उस समय का स्मरण करके कुछ बातें और अपने विचार जो आप हमसे अगर शेयर कर सकें सर, क्योंकि जो हमारे युवा दर्शक देख रहे हैं वो भी जागरूक होकर अपने अतीत को जाने, साथ ही साथ अपनी सेनाओं के सामर्थ्य को जाने। और एक चीज और सर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने डोकलाम के समय बताया कि कैसे इंडियन मीडिया ऐसी खबरें दिखा रहा था जो शायद लगता था कि चाइनीज मीडिया की तरफ से है कुछ। तो ऐसा क्यों होता है सर, और ऐसा क्यों मीडिया का एक वर्ग ऐसा करता है? अगर इसके बारे में भी आपने कुछ विचार साझा करें तो। उन्हें जब लोग बिकाऊ हो जाते हैं तो उसका इलाज सिर्फ इसी में है कि देश के लोग खड़े होकर उनके मुंह पर उनको कहें कि आप बिकाऊ। हमारी ये एक हमारी विडंबना रही है, बहुत से लोग बिकाऊ, क्योंकि किसी न किसी टाइम पर किसी को जॉन्ट्स के लिए भेजा गया, कहीं पर किसी को ये स्कॉलरशिप दे दी गई कि आप जाकर वहां पर पढ़िए, पैसा चीन से आया,
तो उसके बाद एक बार आप बंद गए तो आप कर्जदार हो गए उस देश के। फिर आप के अंदर भारत के प्रति जो प्यार होना चाहिए, उसके अंदर कमी आ गई। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं, सब देशद्रोही हैं। जिनको निज देश से प्रेम नहीं है, जिनको निज देश के प्रति आस्था नहीं है, जो अपने ही देश के थाली में छेद करने पर तुले हुए हैं, उनको और क्या कहेंगे आप? और एक चीज़ को याद रखिएगा, ऐसे बहुत से लोग, खासकर हमारे जो वामपंथी हैं, उन्होंने 1962 के अंदर चीन के समर्थन में बहुत कुछ बोला था। ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग-थलग करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल, जिसको कहा जाता है कि समाज के अंदर हुक्का पानी बंद करना, वैसा कर देना चाहिए ताकि ये अपने आकाओं के साथ रहें और देश से बाहर जाएँ। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, सभी उस सहमति में भी सर हिला रहे हैं। और सच में अगर हम ऐसा करें तो इन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है, जो प्रोपेगेंडा चलता है वो शायद ना चले। और एक लाइन में हमेशा की तरह फिर बोलना चाहूँगा सर, कि हमारा सौभाग्य है कि हम जितनी बार आपसे समय माँगते हैं, समय हमें मिलता है और इतनी सारे महत्वपूर्ण विषय हमें जानने को मिलते हैं आपसे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होती है। जब हमने लॉकडाउन शुरू हुआ था तब ये नमो ऐप वर्चुअल मीट की श्रृंखला शुरू की थी, तब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 130 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ सर। और आपने आज इस महत्वपूर्ण दिन पर समय दिया और इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए पूरी टीम की तरफ सर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सर।